ایک ایسا شہر جہاں تاریخ اور جدید دنیا ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ خوش آمدید باکو میں۔ دوستو، آج ہم ایک شاندار سفر پر نکل رہے ہیں باکو کی جانب۔ تیار ہو جائیں ایک زبردست تجربے کے لیے۔ آج خوبصورتی، لگژری اور منفرد ثقافت کا حسین امتزاج، یہ ہے باکو۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے باکو کی وہ دلکش جھلکیاں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ باکو آذربائیجان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، جو بحیرہ کیسپیئن کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم تاریخ، جدید طرز تعمیر، خوبصورت ساحلی نظاروں اور منفرد کلچر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ باکو کو سٹی آف ونڈز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اکثر تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ شہر مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے، جہاں ایک طرف پرانی گلیاں اور تاریخی عمارتیں ہیں، تو دوسری طرف جدید فلک بوس عمارتیں اور جدید طرز زندگی۔ تاریخی پس منظر: باکو کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ شہر قدیم زمانے میں سلک روٹ کا حصہ تھا، جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ باکو پر مختلف سلطنتوں نے حکومت کی، جن میں فارسی، عرب، عثمانی اور روسی سلطنت شامل ہیں۔ اس تاریخی پس منظر نے شہر کے کلچر، زبان اور طرز زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ باکو کا پرانا شہر، جسے ایچیری شہر کہا جاتا ہے، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ یہاں کی تنگ گلیاں، قدیم دیواریں اور تاریخی عمارتیں آج بھی ماضی کی جھلک دکھاتی ہیں۔ اسی علاقے میں میڈن ٹاور واقع ہے، جو باکو کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ اس ٹاور کے بارے میں کئی کہانیاں اور روایات مشہور ہیں۔ جدید باکو: اگر بات جدید باکو کی کریں تو یہ شہر حیرت انگیز ترقی کا نمونہ ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور عمارتیں فلیم ٹاورز ہے، جو رات کے وقت روشنیوں سے جگمگاتی ہیں اور آگ کی شکل بناتی ہے، جو آذربائیجان کی علامت ہے۔ یہ عمارتیں شہر کے تقریباً ہر حصے سے نظر آتی ہے اور باکو کے جدید چہرے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسی طرح حیدر علییف سینٹر ایک شاندار عمارت ہے، جسے مشہور آرکیٹیکٹ زاہا حدید نے ڈیزائن کیا۔ اس کی منفرد ڈیزائن اور خوبصورت حمیدہ شکل اسے دنیا کی بہترین عمارتوں میں شامل کرتی ہے۔ سیاحتی مقامات: باکو میں دیکھنے کے لیے بے شمار مقامات ہیں۔ باکو بولیوارڈ ایک طویل ساحلی واک وے ہے، جہاں لوگ شام کے وقت چہل قدمی کرتے ہیں اور سمندر کا خوبصورت نظارہ کرتے ہیں۔ یہاں فیملیز، سیاح اور مقامی لوگ سب اکٹھے نظر آتے ہیں۔ نظامی اسٹریٹ خریداری اور تفریح کے لیے مشہور ہے، جہاں بین الاقوامی برانڈز، کیفے اور ریستوران موجود ہیں۔ یہ جگہ خاص طور پر رات کے وقت بہت خوبصورت لگتی ہے، جب ساری سڑک روشنیوں سے زجی ہوتی ہے۔ کلچر اور طرز زندگی: باکو کا کلچر بہت متنوع ہے۔ یہاں یورپی اور ایشیائی اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ لوگ مہمان نواز ہیں اور سیاحوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں۔ یہاں کی زبان آذری ہے، لیکن انگریزی اور روسی بھی کافی لوگ سمجھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ موسیقی اور آرٹ سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، بہت مشہور ہے، جبکہ جدید میوزک اور پاپ کلچر بھی تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ کھانے: باکو کے کھانے بہت لذیذ اور منفرد ہوتے ہیں۔ یہاں کی مشہور ڈشز میں پلاؤ، کباب، دلما اور قفقازی کھانے شامل ہیں۔ چائے یہاں کی ثقافت کا اہم حصہ ہے، جو اکثر میٹھے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ موسم: باکو کا موسم معتدل ہوتا ہے۔ گرمیوں میں موسم
खुशगवार और हल्की हवा के साथ होता है, जबकि सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है लेकिन बर्फ़बारी कम होती है। चूँकि ये शहर समंदर के किनारे वाक़ है, इसलिए यहाँ की हवा हमेशा ताज़ा महसूस होती है। मईशत और तरक्की। बाकू आज़रबाईजान की मईशत का मरकज़ है। यहाँ तेल और गैस की सनत बहुत मजबूत है, जिसने शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और बिजनेस सेंटर्स इस बात का सबूत हैं कि ये शहर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ट्रांसपोर्ट। बाकू में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम काफ़ी बेहतर है। यहाँ मेट्रो, बसें और टैक्सी आसानी से दस्तयाब है। बाकू मेट्रो एक सस्ता और तेज़ ज़रिया सफ़र है, जो शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को आपस में मिलाता है। रात की ज़िंदगी। बाकू की नाइट लाइफ भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ क्लब्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स रात देर तक खुले रहते हैं। ख़ास तौर पर समंदर के किनारे बैठकर रात के वक्त शहर की रोशनियाँ देखना एक यादगार तजुर्बा होता है। नतीजा। आखिर में ये कहा जा सकता है कि बाकू एक ऐसा शहर है जहाँ तारीख, सकाफत, जदीदियत और कुदरती खूबसूरती सब एक साथ मौजूद है। ये ना सिर्फ सयाहों के लिए एक बेहतरीन जगह है, बल्कि एक ऐसा शहर भी है जहाँ हर कोई अपनी पसंद की चीज़ तलाश कर सकता है। अगर आप एक ऐसा सफ़र चाहते हैं जिसमें आपको तारीख़ी मकामात, जदीद इमारतें, मज़ेदार खाने और खूबसूरत मनाज़िर सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, तो बाकू एक बेहतरीन इंतखाब है। Looks like these shops are really popular. बाकू के बारे में मज़ीद बात करें तो इस शहर की असल खूबसूरती इसकी डिटेल्स में छुपी हुई है, जो अक्सर आम सियाहत में नज़र नहीं आती। बाकू का एक ख़ास पहलू इसकी साहिली ज़िंदगी है। कैस्पियन सी के किनारे वाक़ होने की वजह से यहाँ की फ़ज़ा में एक ख़ास ताज़गी महसूस होती है। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी समंदर पर पड़ती है तो एक सुनहरा मंजर बनता है, जबकि शाम को हल्की ठंडी हवा के साथ वॉक करना एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ के लोग अक्सर सुबह जॉगिंग और शाम को फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए साहिल का रुख करते हैं। शहर में आर्ट और कल्चर की झलक
हर जगह नज़र आती है। यारात कंटेम्प्रेरी आर्ट स्पेस जैसे मकामात पर जदीद आर्ट की नुमाइश होती है, जहां लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। ये जगह ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए दिलचस्प है जो तख्लीकी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप बाकू के आम माहौल से हटकर कुछ देखना चाहते हैं तो आतिशगाह ऑफ बाकू एक मुनफरिद मकाम है। ये कदीम आतिशकदा है जहाँ सदियों पहले आग की पूजा की जाती थी। यहाँ की फ़ज़ा में एक पुरस्रारियत और तारीख़ की गहराई महसूस होती है जो इस जगह को बाकी मकामात से मुख्तलिफ बनाती है। बाकू में फेस्टिवल्स और इवेंट्स भी काफ़ी होते हैं। ख़ास तौर पर बाकू जैज़ फेस्टिवल मौसीकी के शौकीन अफराद के लिए एक ज़बरदस्त मौका होता है जहां दुनिया भर के फ़नकार आकर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह शहर में मुख्तलिफ कल्चरल इवेंट्स साल भर चलते रहते हैं जो सियाहों को एक लाइव तजुर्बा देते हैं। अगर थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो बाकू के इर्द गिर्द के इलाके भी बहुत दिलचस्प है। एब्शरॉन पेनिनसुला में आपको मुख्तलिफ कुदरती और तारीख़ी मकामात देखने को मिलेंगे। यहाँ की ज़मीन, हवा और माहौल बाकू के शहरी हिस्से से काफ़ी मुख्तलिफ महसूस होता है। बाकू की एक और ख़ास बात इसकी सफाई और तरतीब है। शहर की सड़कें साफ़ सुथरी हैं, ट्रैफ़िक काफ़ी मुनज़्ज़म है और अवामी मकामात पर नज़्म व ज़ब्त नज़र आता है। यही वजह है कि सियाह यहाँ ख़ुद को महफूज और आरामदेह महसूस करते हैं। यहाँ के कैफ़े कल्चर का भी अपना मज़ा है। छोटे छोटे कैफ़े जहाँ लोग बैठकर चाय या कॉफ़ी के साथ गपशप करते हैं, वो बाकू के रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पर लोकल बेकरी आइटम्स और मीठे खाने एक बार ज़रूर आज़माने चाहिए। शॉपिंग के हवाले से भी बाकू पीछे नहीं। यहाँ आपको जदीद मॉल्स के साथ साथ रिवायती बाज़ार भी मिलेंगे जहाँ से आप सुवेनियर्स, हाथ से बनी अशिया और लोकल मसनूआत खरीद सकते हैं। हर चीज़ में एक कल्चरल टच होता है जो इस शहर को ख़ास बनाता है। बाकू की एक और दिलचस्प चीज़ इसकी आर्किटेक्चर में कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ जदीद ग्लास बिल्डिंग्स है और दूसरी तरफ पुरानी पत्थरों से बनी इमारतें जो एक साथ मिलकर एक मुनफरिद मंजर पेश करती है। यही चीज़ इस शहर को ख़ास बनाती है, शहर को फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेहतरीन बनाती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि बाकू सिर्फ़ एक शहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा है जहाँ हर गली, हर मंज़र और हर लम्हा कुछ नया सिखाता और दिखाता है। यहाँ आकर आपको महसूस होता है कि दुनिया वाकई कितनी मुतनव्वे और ख़ूबसूरत है। यानार डाग आज़रबाईजान के करीब बाकू के शुमाल में वाक़े एक इंतहाई मुनफरिद कुदरती मकाम है जिसका मतलब ही जलता हुआ पहाड़ है। ये जगह इसलिए मशहूर है कि यहाँ ज़मीन की सतह से कुदरती गैस मुसलसल खारिज होती रहती है और जब ये गैस हवा के साथ राब्ते में आती है तो खुद ब खुद आग पकड़ लेती है। यही वजह है कि यहाँ एक लंबी दीवार की तरह शौले मुसलसल जलते रहते हैं। ये आग किसी इंसान की लगाई हुई नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर कुदरती है। इस इलाके में ज़ेर ज़मीन गैस के ज़खायर मौजूद है जो दरारों के ज़रिए बाहर आते हैं। चूँकि गैस में मीथेन शामिल होती है इसलिए वो आसानी से जल उठती है और मुसलसल जलती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि ये शौले बारिश या हवा से भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते, बस कभी कभार इनकी शिद्दत कम या ज़्यादा हो जाती है। आज़रबाईजान को तारीख़ी तौर पर
आग की सरजमीन भी कहा जाता है और जानार दाग इसी शनाख्त का एक कुदरती सबूत है। कदीम ज़माने में मुसाफिरों और ताजरों ने इस इलाके में हमेशा जलती हुई आग को देखकर इसे मुक़द्दस समझा और इसके गिर्द मुख्तलिफ कहानियाँ और अकायद भी बनाए गए। आज के दौर में यानार दाग एक सियाहती मकाम बन चुका है। यहाँ लकड़ी के प्लेटफॉर्म और देखने के लिए मखसूस जगहें बनाई गई हैं ताकि लोग महफूज तरीके से शॉलों को देख सकें। रात के वक्त जब अंधेरा होता है तो ये जलती हुई दीवार और भी ज़्यादा खूबसूरत और हैरान कुन लगती है। ये जगह न सिर्फ एक कुदरती अजूबा है बल्कि इस बात की भी मिसाल है कि ज़मीन के अंदर छुपी हुई तवानाई किस तरह मुसलसल एक मुनफरिद मंजर तख्लीक कर सकती है। शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट आज़रबाईजान का सबसे मशहूर और जदीद पहाड़ी तफरीही मकाम है जो मुल्क के शुमाली हिस्से में वाक़ है। ये जगह ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जन्नत समझी जाती है जो बर्फ़, पहाड़ों, एडवेंचर और कुदरती खूबसूरती को एक साथ इंजॉय करना चाहते हैं। ये रिजॉर्ट आज़रबाईजान के कूबा खुशमास कूबा खुसर रीजन में वाक़ है और सतह समंदर से काफ़ी बुलंद पहाड़ी इलाके में फैला हुआ है। यहाँ पहुँचते ही मौसम, हवा और मंजर मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। नीचे शहर की गर्म फ़ज़ा और ऊपर ठंडी पहाड़ी हवा एक अलग ही एहसास देती है। सर्दियों का मौसम और एस्की एक्टिविटीज़ शाहदाग की सबसे बड़ी खासियत इसकी बर्फ़ है। सर्दियों में ये पूरा इलाका सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है और एक मुकम्मल एस्की रिजॉर्ट में तब्दील हो जाता है। यहाँ मुख्तलिफ लेवल के एस्की ट्रैक्स मौजूद हैं, बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक। लोग यहाँ एस्की, स्नोबोर्डिंग और स्नो मोबाइल जैसी एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो पहली बार बर्फ़ देख रहे हो, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स और जदीद सहूलियात मौजूद हैं। केबल कार और पहाड़ी मनाजिर शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट में केबल कार सवारी एक लाजमी तजर्बा है। जब आप केबल कार में ऊपर जाते हैं तो नीचे वादियों, बर्फ़ से ढके पहाड़ों और दूर तक फैले हुए मंजर एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। यह सफ़र ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि काफ़ी पुरसकून भी होता है। रिहाइश और जदीद सहूलियात ये रिजॉर्ट मुकम्मल तौर पर जदीद तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ 5 स्टार होटल्स, चैलेट्स, रेस्टोरेंट्स और स्पा सहूलियात मौजूद हैं। सयाह दिन भर एडवेंचर करने के बाद शाम को आरामदेह माहौल में वक्त गुजारते हैं। रात के वक्त यहाँ का माहौल बहुत रोमांटिक और पुरसकून हो जाता है। गर्मियों का सीज़न शाहदाग सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी बहुत खूबसूरत होता है। इस वक्त यहाँ सब्ज़ घास, ठंडी हवा और हाइकिंग ट्रैक्स होते हैं।
लोग माउंटेन ट्रैकिंग, बाइकिंग और नेचर वॉक का लुत्फ उठाते हैं। गर्मियों में ये जगह एक मुकम्मल एडवेंचर पार्क बन जाती है। फैमिली और सयाहती जगह, ये मकाम सिर्फ एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए नहीं बल्कि फैमिलीज़ के लिए भी बेहतरीन है। बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, महफूज माहौल और ख़ूबसूरत नज़ारे इसे हर उम्र के लोगों के लिए पुरकशिश बनाते हैं। खुलासा: शाहदाद माउंटेन रिजॉर्ट एक ऐसा मकाम है जहां कुदरत, एडवेंचर और लग्जरी एक साथ मिलते हैं। चाहे आप बर्फ़ में खेलना चाहते हो, पहाड़ों के दरमियान सुकून चाहते हो या सिर्फ खूबसूरत मनाजिर देखना चाहते हो, ये जगह हर तरह के तजर्बे के लिए बेहतरीन है। दुबई रेजिडेंट UAE वीज़ा होल्डर के लिए अगर आपके पास UAE का रिहायशी वीज़ा है तो आपको आम तौर पर आसानी से वीज़ा मिल जाता है। प्रोसीजर: ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होता है। एसान वीज़ा सिस्टम: पासपोर्ट की कॉपी, कम से कम 6 माह वैलिडिटी। UAE रेजिडेंस वीज़ा की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ईमेल एड्रेस और बेसिक डिटेल्स। टाइम: आम तौर पर 3 से 5 वर्किंग डेज में वीज़ा आ जाता है। फीस: तकरीबन 20 से 50 USD, वीज़ा टाइप पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान नेशनल के लिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए भी वीज़ा अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस हो सकता है। प्रोसीजर: ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, एसान वीज़ा, पासपोर्ट कॉपी, 6 मंथ्स वैलिडिटी लाजमी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ट्रैवल डिटेल्स, फ़्लाइट होटल बुकिंग बाज़ औक़ात मांगी जा सकती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। टाइम: 3 से 7 वर्किंग डेज़, कभी कभार ज़्यादा भी लग सकता है। फीस: तकरीबन 20 USD, स्टैंडर्ड सिंगल एंट्री वीज़ा। इंपॉर्टेंट टिप्स: पासपोर्ट पर कोई डैमेज या इशू नहीं होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बेहतर होता है। मैंडेटोरी नहीं, लेकिन रेकमेंडेड है। रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग रखना बेहतर है। इमिग्रेशन पूछ सकती है। वीज़ा प्रिंट साथ रखें। एक्स्ट्रा इन्फो: अज़रबैजान का वीज़ा सिस्टम काफ़ी सिंपल है और ज़्यादातर सयाह ऑनलाइन ही अप्लाई करके आसानी से सफ़र कर लेते हैं। ख़ास तौर पर बाकू जाने वाले लोग इसी वीज़ा पर ट्रैवल करते हैं।
دودي أنا الهات आज़रबाईजान सिर्फ बाकू या पहाड़ी रिजॉर्ट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जो हर किस्म के ट्रैवलर के लिए दिलचस्प हैं। चाहे आप हिस्ट्री पसंद करें, नेचर, एडवेंचर या लग्जरी ट्रैवल। एक इचरे शहर, ओल्ड सिटी बाकू। इचरे शहर ये बाकू का पुराना शहर है जहाँ तंग गलियाँ, कदीम दीवारें और तारीखी इमारतें मौजूद हैं। यहाँ चलते हुए आपको लगता है जैसे आप माजी में आ गए हों। छोटे कैफ़े, सूवेनियर शॉप्स और तारीखी माहौल इसे ख़ास बनाते हैं। 2. गोबस्तान नेशनल पार्क। गोबस्तान नेशनल पार्क ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ कदीम पत्थरों पर बनी हुई हज़ारों साल पुरानी तस्वीरें, रॉक कार्विंग्स मौजूद हैं। साथ ही यहाँ मिट्टी के आतिशफ़िशा मड वॉल्केनोज़ भी हैं जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं। 3. एटिशगाह फायर टेम्पल। एटिशगाह ऑफ बाकू ये एक तारीखी आतिशकदा है जहाँ कदीम ज़माने में आग की इबादत की जाती थी। यहाँ की आर्किटेक्चर और हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो एंशंट कल्चर में दिलचस्पी रखते हैं। 4. कैस्पियन सी बुलेवार्ड। बाकू बुलेवार्ड ये लंबा साहिली वॉकवे है जहाँ लोग वॉक, साइकिलिंग और फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। यहाँ से बहीरे कैस्पियन का मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है, ख़ास तौर पर सनसेट के वक्त। 5. गबाला। गबाला ये एक बहुत खूबसूरत माउंटेन रीजन है। यहाँ केबल कार, वाटरफॉल्स और ग्रीन वैलीज़ हैं। ये जगह ख़ास तौर पर समर में बहुत फ्रेश और पीसफुल लगती है। 10. शाहदाग। शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट ये आज़रबाईजान का फेमस स्की रिजॉर्ट है। सर्दियों में यहाँ स्नो एक्टिविटीज़, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग होती है, जबकि समर में हाइकिंग और माउंटेन व्यूज़ एंजॉय किए जाते हैं। 7. लैंकरान सदर्न नेचर। लैंकरान ये इलाका सब्ज़ पहाड़ों, चाय के बागात और समंदर के करीब होने की वजह से बहुत ख़ास है। यहाँ का मौसम भी बाकी शहरों से काफ़ी डिफरेंट और ह्यूमिड होता है। 8. कुबा और खिनालुग विलेज। खिनालुग विलेज ये एक बहुत ऊंचा और कदीम पहाड़ी गांव है। यहाँ के लोग अपनी पुरानी कल्चर और लैंग्वेज को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। रोड ट्रिप के लिए ये जगह बहुत पॉपुलर है। खुलासा, आज़रबाईजान में एक ही सफ़र में आपको ये सब कुछ मिलता है। जदीद शहर और स्काईस्क्रेपर्स, कदीम तारीखी मकामात, बर्फ़ वाले पहाड़, सब्ज़ वादियाँ और साहिली खूबसूरती। यही वजह है कि ये मुल्क शॉर्ट ट्रिप के लिए भी परफेक्ट है और लॉन्ग वेकेशन के लिए भी।
तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शानदार सफ़र अज़रबैजान और बाकू से लेकर इसकी खूबसूरत वादियों और पहाड़ों तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस ट्रिप को हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली ट्रैवल वीडियो सबसे पहले मिल सके। मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प सफ़र और ख़ूबसूरत जगहों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ।